It's a very lovely good evening from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine. And we on our part always pray to the Almighty to keep you safe, sound, and healthy, and at the same time shower supreme amount of success in your every effort, and especially in the upcoming examination. Each one of you fare well and come out with flying colors. That's what we call our ardent wish. So, on such note, we start today's this particular what we call a specially conducted session, especially kept session, wherein we are going to, of course, assess the repercussions and the consequences, and do we need to change our strategy, and of course, various other questions which are springing in your heart and mind, both, especially after the announcement made by what we call your esteemed institute with respect to what we call online examination mode. Correct. So many among us have been taken almost by surprise due to this sudden announcement, especially just prior to the upcoming examination. But at the same time, here I would love each one of you to show a little bit of patience, keep yourself absolutely cool, calm, and composed. There is no point in what we call complaining against the institute simply because of the fact that you are matured, and you must understand that it's a premier body and it has lots of responsibility. They have to conduct the examination on such a vast scale because they have got thousands of their students, and not only in India but overseas, and it's a very difficult exercise to carry out. So you must understand the what we call position, and there must be what we call some constraining factors upon the institute which force them virtually to take this particular decision. So my ardent request to each and everyone, to the student fraternity, and to all those who are associated in this academic field, to not to have any sort of what we call complain against the institute. One need to understand that no one feels very happy in springing such what we call surprises. There must be some reasons, there must be some compulsions upon the institute, and that's the reason actually they have decided to actually conduct the online examination. And as far as my experience goes by, it says that the main reason must be because lots of time has already been lost. So many time examinations have been postponed and extended, and even they know that the students are feeling a little bit what we call jittery. And 2000 and June 2020 examination could not be conducted. So simultaneously now, those who were wishing to, or those who were aspiring to actually give the attempt in June, and those who were already eligible for the summer attempt, so a merged examination they have decided to conduct. So quite obviously, means so many students are going to give the examination in merged manner. It means it would have taken lots of time to assess the answer sheets. So perhaps that is the main reason institute thought that it is better to do the merged examination, not to waste the time of the student fraternity, and conduct the examination in such a manner so that the assessment task becomes easy and results can be released on time. So this particular session which we are conducting today is specially meant for CMA students who are at intermediate level and at the same time are in group 1. And I have made a simple paper for you just to erase out all the hunches, all the fears, all the scares, and all confusions and chaos, as I said a moment ago, which is springing up in your mind. Correct? So, after having gone through this particular what we call session, I'm very sure that you won't feel as much jittery as you were prior to this one. So, here we go and start what we call our session. Now, I will move over to Hindi. तो बेटे मैंने मैं कहा कि जो ये अनाउंसमेंट हुई है ऑनलाइन मोड का पेपर होगा नंबर 1। अब सबसे पहले आप बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर अब हमारी तैयारी कैसे होगी? क्या हमें अपनी तैयारी में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है? हालाँकि मैं पहले ही 2 वीडियो इन चीज़ों पे ऑलरेडी यूट्यूब में रिलीज़ कर चुका हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो मैं सिर्फ़ नटशेल में ये कहूँगा कि आपको अपनी तैयारी में किसी तरीके की कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन के अंदर यही मान के चलोगे कि आप अभी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप नॉर्मली करते थे, उसी तरह की तैयारी आपकी बरकरार रहनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि अब हमारे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तो उसीलिए मैंने ये पर्टिकुलरली क्लास रखी है, जिसमें हम एक तरीके से आपके सामने एक मॉक टेस्ट पेपर रख रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर ओरिजिनलिटी क्लेम बिल्कुल नहीं करूंगा,
जो हमने ये पेपर भी लिया है इंस्टीट्यूट की साइट से ही लिया है, उनके जो एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स हैं या रिहर्सल टेस्ट पेपर, उसी में से हमने कंपाइल करा हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, हालांकि हमने इसमें कुछ क्रिएटिविटी है थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर दी है, ताकि आपको थोड़ा सा एक पता लग जाए कि अब जो ऑनलाइन मोड में पेपर होगा वो किस तरीके से होगा। हालांकि मैंने कहा आपके दिमाग से सबसे पहले तो ये चीज निकाल दो कि कोई नई फॉर्मेशन होगी, क्वेश्चन की वही फॉर्मेशन होगी, बस फर्क ये होगा कि अब आपको वैकल्पिक क्वेश्चन में से जो वैकल्पिक वैकल्पिक का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव्स, तो ऑल्टरनेटिव आंसर्स आपके पास मौजूद होंगे, उसमें से एक को आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बस फर्क ये है कि जो क्वेश्चन आप नीटली पहले, खासतौर से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते थे, उनको आप नीटली प्रेजेंट करते थे, आपका टाइम भी बढ़ा जाता था, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता था। अब वही काम आप अभी भी करेंगे, लेकिन फर्क ये है कि वो आप एक रफ शीट में करेंगे। तो इसका मतलब है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि आपको तैयारी बिल्कुल किसी तरीके की उसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। आप मन में यही मान के चलोगे कि आप जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे थे, आपको वही तैयारी अपनी बरकरार रखनी है। नंबर वन। नंबर टू, अब पेपर का पैटर्न कैसा होगा वो मैं अभी आपके सामने आता हूं, लेकिन उससे पहले बस मैं एक चीज और कहूंगा। मैंने कहा अब बिकॉज जाहिर है कि पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, तो हालांकि इंस्टीट्यूट ने अभी क्लैरिफाई नहीं करा है कि पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, लेकिन ये निश्चित है कि अब पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो सकता है, मल्टीपल क्वेश्चंस भी उसमें हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम उनके लिए एक ही शब्द का यूज करेंगे, एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर भी कई वेरिएशन है। ऑब्जेक्टिव टाइप में कई वेरिएशन हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा एमसीक्यू तो है ही, उसके अलावा उसमें ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के भी चांसेस पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि इन सब में वैकल्पिक आंसर्स आपको दिए जा सकते हैं, आपको सिर्फ उसमें सही आंसर को मार्क आउट करना होगा। तो बेसिकली पेपर पैटर्न जो होगा क्वेश्चन का वो ये होगा, लेकिन क्या इससे कोई बदला हुआ सा आपको लगेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मैं आपके सामने बताता हूं। यहां पर ध्यान से देखें, ये आपका क्वेश्चन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैंने पहले ही कहा कि इंस्टीट्यूट की जो साइट है उसमें जो उनके रिवीजन टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट पेपर है उन्हीं से हमने इसको एक्सट्रैक्ट करा है। आप इंस्टीट्यूट की साइट से भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन फर्क ये हमने थोड़ा सा इसको क्रिएट कर दिया, उसमें क्रिएटिविटी ऐड कर दी है, तो वहीं से कंपाइल्ड फॉर्म में है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो पहला आपका क्वेश्चन होता था वो वैसे भी ऑब्जेक्टिव होता था। आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होता था उसके दो पार्ट होते थे। क्वेश्चन नंबर एक, सेक्शन ए के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलता था, और उस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते थे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिकॉज मिलते थे तो यहां पर आपका कोई चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर वन में पार्ट ए में लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको करीब 10 क्वेश्चन दिए हैं। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर वन के अंदर पार्ट ए है, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है और 10 मल्टीपल क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प मौजूद हैं, आपको सही विकल्प पे केवल निशान लगाना है। ये 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन में पार्ट बी होता था आपका। पार्ट बी जो आपका आता था वो मैच द फॉलोइंग होता था, उसके भी आंसर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, इसका मतलब 10 और 5 15। और उसके बाद आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होता था, उसमें जो स्पेसिंग दी होती थी उसको आपको फिलअप करना पड़ता था कि वहां पर सही कॉन्सेप्ट, सही वर्ड क्या आएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। और उसके अलावा आपने देखा 5 मार्क ये भी हो गए, 10 और 5 15, 15 और 5 सॉरी 10 और 15 और 5 20 ही हो गए। और उसके बाद स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू और फॉल्स मैनर। और फिर कुछ क्वेश्चंस होते थे ट्रू एंड फॉल्स से। तो क्वेश्चन नंबर वन जो होता था वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पहले भी आता था, 25 मार्क्स तो आपके उसमें वैसे भी होते थे, इजंट इट और नॉट। तो इसलिए उसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं देखा जाए। तो यहाँ तो अब आपका थोड़ा डर कम होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी आप 25% पोर्शन अपने पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप ही फेस करते थे। अब हम आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता था, आपको 7 क्वेश्चंस दिए होते थे, उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने होते थे। इसका मतलब सेकंड पार्ट में सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन बेसिकली 15 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन इंटू 50 मार्क। इसका मतलब सेक्शन बी 75 मार्क्स का होता है। इस तरह टोटल आपके 100 मार्क्स बन जाते थे। अब यहाँ पर जो बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो मैं उनका डर दूर कर देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने थोड़ी सी डेट्स वगैरह चेंज कर दी हैं थोड़ा करंट ईयर में लाने के लिए, या थोड़ा फ्रेश लुक क्वेश्चन को लगे। अदरवाइज क्वेश्चन मैंने जैसा कि कहा आपके आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर या रिहर्सल टेस्ट पेपर से ही लिए गए क्वेश्चन है, करेक्ट।
हो सकता है हमने थोड़ा नाम चेंज कर दिया, वो एक अलग मैटर है, बाकी सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही हैं। चाहे वो रिवीजन टेस्ट पेपर हो, आरटीपी हो या मॉक टेस्ट पेपर हो। अब जैसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब पहले ये क्वेश्चन की ओरिजिनल फॉर्मेट है। देखो मैंने उस ओरिजिनल फॉर्मेट को जानबूझ के चेंज नहीं करा, आपको ये बताने के लिए कि पहले क्या होता था। पहले क्वेश्चन ने पूछा है मशीनरी अकाउंट बनाओ, मशीनरी डिस्पोज़ल अकाउंट बनाओ और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो पहले आपको बहुत नीट तरीके से मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोज़ल अकाउंट, फिर प्रोविज़न फॉर मशीनरी अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता था। करेक्ट? अब इसी क्वेश्चन को अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन तो आपको वही आया, लेकिन अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, जो पहले रिक्वायरमेंट थी डिस्क्रिप्टिव तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाता था, इस तरीके से पूछा जाता था। लेकिन अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन तो वही मिल रहा है आपको, लेकिन अब मैंने क्या लिख दिया, आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा फॉलोइंग एमसीक्यू, क्वेश्चन सिर्फ यही बोलेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, एमसीक्यू 1, बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट एज ए 31/12/2023। अब वो कह रहे हैं कि करंट ईयर के एंड में मशीनरी अकाउंट पे बैलेंस कितना है, इसके अंदर आपको 4 विकल्प दिए हैं। तो क्या आप ब्लाइंडली इस पे मार्क कर दोगे? नहीं कर सकते। क्या अगर आपने 10,000 क्वेश्चन पढ़े होते ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप इसका आंसर दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। इसका मतलब मार्केट में जो कई जगह अब क्या होता है, जब कोई नई चीज़ आती है तो लोग थोड़ा-सा ट्रिक्स भी प्ले करना शुरू कर देते हैं। अब देखोगे आप कुछ टाइम के बाद बाढ़ सी आ गई है, 15,000 क्वेश्चन बैंक, 1 लाख का क्वेश्चन बैंक, 1 लाख क्वेश्चन्स है इसमें। तो इस तरह के काम बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना है आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ ही करनी है। सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पॉइंट ख़ैर यहाँ ये चल रहा था। अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिला। फिर दूसरा क्वेश्चन हमको मिला कि एमसीक्यू 1, बैलेंस इन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो मैंने इस क्वेश्चन को नए फॉर्मेशन के हिसाब से 2 एमसीक्यू में टर्न कर दिया। बात समझ में आ गई? और मैंने उसको लिख दिया 3 इंटू 2, यानी कि ओरिजिनली 6 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन अब मैंने 2 एमसीक्यू पूछे, तो मैंने और एक एमसीक्यू 3 मार्क्स, दूसरा भी 3 मार्क्स का। लेकिन अब सिर्फ टिक करने के 3 मार्क्स नहीं होंगे। क्वेश्चन तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो मैंने नीटली सॉल्व करा है, क्योंकि ये जो पेपर है मैं इसको अपने लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएँगे, लेकिन डाउनलोड आप संडे या उसके बाद ही करना। करेक्ट? अभी ये सैटरडे तक अपलोड नहीं होंगे, सैटरडे के बाद ही हम इसको अपलोड करेंगे। जो डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ आप मेरी टेलीग्राम चैनल में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब पहले आप क्या करते थे, बड़े नीट तरीके से मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ता था, फिर आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता था, फिर मशीनरी डिस्पोज़ल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता था। लेकिन अब मैंने क्या करा, या अब क्या होगा, आपको सिर्फ़ इन 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अब आपको ये काम तो प्रेज़ेंट नहीं करना है। ये काम लेकिन आपको करना है। प्रेज़ेंट तो नहीं करना, लेकिन करना है। इसका मतलब आप रफ़ में ये काम करेंगे। क्वेश्चन आपको अभी भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप मशीनरी अकाउंट बनाएँगे नहीं, आपको उसका बैलेंस पता नहीं लगेगा। मान लेते हैं आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, आपको बैलेंस पता लगा कि 3 लाख रुपए का है। अब आप देखो कि आपके एमसीक्यू में 3 लाख को किस ऑप्शन के आगे लिखा है, बी के आगे लिखा है, तो आप बी को टिक मार्क कर देंगे। यानी कि सही क्वेश्चन को मार्क आउट करने के लिए भी आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखें, इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए कि भले ही अब ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे निश्चित रूप से, लेकिन डिस्क्रिप्शन का काम आपको अभी भी करना पड़ेगा। बस फ़र्क ये है कि वो आप रफ़ शीट में करेंगे, और बिकॉज़ रफ़ शीट में करेंगे तो आपको यहाँ एक फ़ायदा ये है कि आप तेज़ रफ़्तार से काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने प्रेज़ेंट नहीं करना। और उनको तो बहुत ही फ़ायदा है जिनको लिखने में बड़ी समस्या होती है, जिनको ज़्यादा लिखने में बड़ा दर्द महसूस होता है, बाबा, और ख़ास तौर से जिनकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हो गया है। ठीक है ना? इसी तरीके से तो सारी वर्किंग वर्किंग जो भी है वो आप अपनी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो है वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। अब जो क्वेश्चन था ओरिजिनली, जो क्वेश्चन था उसमें आपको कहा गया था कि प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को देखो, ये जो ओरिजिनल था ना, ओरिजिनली ये क्वेश्चन 9 मार्क का था, और ओरिजिनली क्वेश्चन में लिखा हुआ था ड्रॉ अप द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड इंदूज अकाउंट, इंदू जो है कंसाइनी है, तो 9 मार्क्स का था। लेकिन अब हमने इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में कैसे चेंज कर दिया। ये देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन अब एमसीक्यू में हमने क्या कर दिया, एमसीक्यू 1,
अमाउंट ऑफ एबनॉर्म और एमसीक्यू मैंने इसमें 3 बनाए, यानी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 एमसीक्यू बनाए और इसलिए मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 क्योंकि क्वेश्चन 9 मार्क का था। तो हर क्वेश्चन, हर एमसीक्यू 3 मार्क का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टिक मार्क करने के आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। टिक मार्क्स सही क्वेश्चन, सही आंसर पता करने के 3 मार्क्स हैं और पता करने के लिए आपको अपनी रफ शीट में डिस्क्रिप्टिवली पूरा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप पहले आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब आप उसका सही आंसर दे पाएंगे, जो कि मैंने बना करके मैंने आंसर भी दिए हुए हैं। आप पूरा अपना कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे तो अपनी एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह की कैलकुलेशन करेंगे जैसे आप करते थे, उसके बाद ही आप एमसीक्यू के आंसर दे सकते हैं। तो बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए क्यों मैं कह रहा हूं कि आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब इस पर बेस्ड एमसीक्यू क्या है? अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू बी क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके 4 विकल्प यहां पर दिए हुए हैं। शीट नंबर ये 4 है, तो शीट नंबर 5 में मैं आया। 4 विकल्प है, सही विकल्प का आंसर पता करने के लिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जाहिर है कंसाइनमेंट अकाउंट आप बनाओगे तभी आपको प्रॉफिट का पता लगेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने देखा सब कुछ वही है, सिर्फ अब वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में चेंज हो गया है। तो अब आपकी समझ में बात बहुत अच्छी तरह से आ जानी चाहिए कि बेसिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इसी तरीके से अगर रिसिट एंड बेस्ड पर क्वेश्चन, जैसे थर्ड क्वेश्चन है रिसिट एंड बे, इसमें रिसिट एंड पेमेंट बनाना है, ये एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट मुंबई क्लब, सॉरी रिसिट एंड पेमेंट नहीं बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। रिसिट एंड पेमेंट तुम्हें दिया है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2021। नॉर्मली हम लोग जब करते थे तो क्या करते थे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते थे या जो एडजस्टमेंट होती थी हम उसके भी अकाउंट बना लेते थे। इजंट इट और नॉट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता था, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बनाते थे, बल्कि हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट इकट्ठे ही बना लेते थे। कुछ एडजस्टमेंट भी इससे दिए हैं, हालांकि मैं एडजस्टमेंट वगैरह नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि यहाँ इस सेशन में मुझे क्वेश्चन या उसके सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करनी, मुझे पैटर्न के बारे में बात करनी है। तो मेन क्वेश्चन था कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर मैं मेन तरीके से सॉल्व करता तो पहले इनकम एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट और फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट भी मुझे बनानी पड़ती, और वो आपको अभी भी बनानी पड़ेगी, लेकिन वो काम आप प्रेजेंटेशन के एंगल से नहीं करेंगे, वो आप रफ में भी कर सकते हैं, तेज रफ्तार से भी कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड मैंने एमसीक्यू क्या बना दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, बेसिकली 15 का था, इसमें मैंने 5 इंटू 3 कर दिया। 3 क्वेश्चन डाल दिए, 5 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क्स। हो सकता है कि इसकी जगह 3 की जगह 5 क्वेश्चन भी वो डाल दे, लेकिन पॉइंट ये है कि तुम्हें समझाने इस वक्त मेरा पर्पज है। तो अब क्वेश्चन किस तरह बन गया? एमसीक्यू 1, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट आएगा, तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। इसी तरह एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिजल्ट है, एक्सेस जिसको तुम बोलते हो, उसका अमाउंट कितना है, इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो इसका मतलब सभी कुछ करना पड़ेगा। और फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड एट क्लोजिंग, यानी कि ईयर के एंड में, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का अमाउंट कितना होगा। इस तरीके से आपको बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे मेरे। अब इस बात को सुनने के बाद तो वैसे अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी समझ में आ जाना चाहिए जो मैं बात बताना चाह रहा हूं। इसी तरह से मान लेते हैं ये पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो ओरिजिनली ये क्वेश्चन था, इसमें लिखा था प्रिपेयर द मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ये ओरिजिनल फॉर्मेट में क्वेश्चन था। तो इसका मतलब सब कुछ आपको पहले करना पड़ता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, इजंट इट और नॉट? अब इसी क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, तो मैंने इसमें कुछ एमसीक्यू डाल दिए। एमसीक्यू मैंने क्या लिखा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके अंदर 4 विकल्प दे दिए हैं और सही विकल्प आपको फाइंड करना है। इसी तरह से लॉस एज पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितनी होगी। इन 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अविनाश कैपिटल अकाउंट, इसी तरह बैलेंस शीट टोटल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ये अगली शीट में करा हुआ है। ठीक है, शीट नंबर ये 9 थी। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में पार्ट ए में वो कहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर 6 मंथ्स इज गिवन। ये डिपार्टमेंटल का, जो हमने डिपार्टमेंटल का पहला क्वेश्चन करा है ना, ये वही क्वेश्चन है। इवन आपके आरटीबी में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में मौजूद थे। एनीवे, बस ये है कि थोड़ा सा फिगर्स में चेंज हुआ है। तो डिपार्टमेंटल में जो पहला क्वेश्चन करा था, तो इसमें आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। क्वेश्चन की ओरिजिनल डिमांड तो वही है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 9 मार्क का है, इसके इस क्वेश्चन को मैंने एमसीक्यू में चेंज कर दिया।
डिपार्टमेंटल से रिलेटेड कि अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी अपोर्शन टू डिपार्टमेंट ए। अब मैंने यहाँ विकल्प नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, जो भी सही विकल्प होगा उस विकल्प पे आप करेक्ट आंसर कर देंगे। इसी तरह अमाउंट ऑफ वेजेस अपोर्शन टू डिपार्टमेंट बी, वेजेस का कितना हिस्सा डिपार्टमेंट बी में आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह अमाउंट ऑफ रेंट टू बी अपोर्शन टू डिपार्टमेंट बी, अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस टू बी अपोर्शन टू सी, gross profit of department A, net loss of department B and balance in general P&L। बैलेंस इन जनरल P&L का मतलब है जो नेट प्रॉफिट डिफरेंट डिपार्टमेंट का आता था, हम एक जनरल P&L में उसको ट्रांसफर कर करके ये देखते थे कि टोटल जो है प्रॉफिट कितना है। तो इस तरह आपने देखा, ये 7 क्वेश्चन इस पर बेस्ड मैंने बना दिए। आपकी बात मेरे ख्याल से अब समझ में आ जानी चाहिए कि जो आपका पेपर पैटर्न है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सेल बैलेंसिंग लेजर का है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं। अब आपको मैं जो मेन चीज बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आएंगे, बस उनके एमसीक्यू के पार्ट होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन मैंने दिया है। फिर कुछ एमसीक्यू तुम्हें दिए हुए हैं, फिर ये रॉयल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट इन द फर्स्ट ईयर, फिर अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इन द सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड इन द थर्ड ईयर, अमाउंट पेएबल। तो इस तरीके से ये जो पेपर्स हैं, मैंने पूरा ये पेपर आपके सामने बनाया है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, अधिकतर जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता था ना, उसमें आपसे शॉर्ट नोट पूछे जाते थे। अब आपको तो एक बड़ी अच्छी चीज हो गई, अब आपको तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ वैसे ही दिया रहेगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब मैंने उसका एमसीक्यू फॉर्मेट कैसे बनाया, मैंने लिखा मार्क आउट दी इनकरेक्ट ऑप्शन, कि जो इनकरेक्ट है उससे इनकरेक्ट जो है वो आपको बताना है। अब मैंने यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लिखे, उसके अंदर मैंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में लिखा। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको देखना है कि ये सारी चीजें करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वैसे ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो मेरा आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसका मतलब इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इसका मतलब आपको थ्योरी भी नहीं पढ़नी है, ये तो आपके लिए और भी अच्छा हो गया। तो इसी तरीके से फिर दूसरा था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एबनॉर्मल लॉसेस। तो मैंने एबनॉर्मल लॉसेस को एमसीक्यू फॉर्मेट में कैसे डाल दिया, इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में कैसे डाल दिया, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ मैंने एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में कुछ लिखा है, आपको ये बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप बताओ इसमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है। इसी तरह से अगले एमसीक्यू में मैंने कहा कि बियरर प्लांट, जो कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करा था एएस 10 के अंदर, याद है ना आपको, तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, और तुम्हें नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो भी आपका सही आंसर है आपको सिर्फ वो करेक्ट करना है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर है। तो करीब और ये आईसीआई इंस्टीट्यूट की रिलीज है, वो सभी को मालूम है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो इस सेशन में मुझे यही बताना था। नंबर 1, एक शेर है ना कि ये जिंदगी है इसमें बदलावों का कोई सिला नहीं, ये जिंदगी है इसमें बदलाव का कोई सिला नहीं। इसका मतलब है ये लाइफ है, लाइफ चेंज होती रहती है और चेंजेस की कोई लिमिट नहीं है। ये जिंदगी है इसमें बदलाव का कोई सिला नहीं, लेकिन कर मजबूत इतना अपने को कि हो इससे कोई गिला नहीं। कर्म अपने को मजबूत इतना कि हो इससे कोई गिला नहीं। कहने का मतलब है कि बदलाव आते रहते हैं और वो लिमिटलेस हैं, लेकिन हमें अपने को इतना स्ट्रांग करना है कि हमें उससे कोई शिकायत ना हो। आप मेरे कहने का आशय समझ गए होंगे। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, नंबर 1, आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, और खास तौर से आज का सेशन सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन का जो फॉर्मेशंस होंगी वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो पेपर का पैटर्न होता था, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा उसका स्वरूप। बस फर्क ये है कि लंबे क्वेश्चंस के लिए अब आपको एक अच्छी चीज ये है कि आपकी उसकी प्रेजेंटेशन नहीं करनी है, वो आप रफ शीट में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको अभी भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और सही विकल्प पे आप उसका आंसर देंगे। नंबर 3, अपना संयम रखना है, अपनी बिलीफ रखना है, अपने पर एहतराम रखना है, अपनी इंस्टिंक्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि सेल्फ बिलीफ और इंस्टिंक्ट ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को जिंदगी में सक्सेस दिलाने में सबसे अहम रोल प्ले करती हैं। चौथा, इधर उधर की बातों में नहीं आना है कि ये इसमें 15,000 क्वेश्चन है, इसमें 10,000 क्वेश्चन है, इसमें 20,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ले लो, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कहीं हो सकता है? यू ऑल आर मैच्योर्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस तरह की बातों में ना आए। पांचवा, अपने फ्रेंड्स की, या कई बच्चे होते हैं इधर उधर की बातें सुनना शुरू कर देते हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है,
तो बेवजह इससे क्या होता है, वो कहते हैं ना कि इस वक़्त आपको अपना माइंड अनक्लटर्ड रखना। अनक्लटर्ड का मतलब इधर-उधर की बातों से उसको उसको समाने नहीं देना है उसमें। तो यू हैव टू फोकस इन योर स्टडीज़ एज़ यू वर डूइंग। तो इन बातों के साथ अब वक़्त आ गया है कि मैं आपसे अलविदा लूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें जो आपसे कहनी थी, ख़ास तौर से मेन जो आपको बताना था, मुझे क्वेश्चन का पैटर्न बताना था। बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा स्पेशली एक सेशन आपके लिए भी कर दूँ। हालाँकि इससे पहले मैंने सीएमए फाइनल के लिए और ग्रुप 2 के लिए भी सेशन स्पेशली करे हैं। मैंने कोई कॉमन सेशन नहीं करा, क्योंकि मुझे सिंपल पेपर भी बच्चों को दिखाने थे। ये पेपर आप डाउनलोड कर लेंगे सैटरडे के बाद से संडे को, यानी कि संडे को या उसके बाद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। करेक्ट? तो अब कम से कम इन बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद, अब किसी तरीके की शंका, आशंका और किसी तरीके का दुविधा, किसी तरह का क्यूस और किसी तरह का स्केयर फेयर नहीं होना चाहिए। करेक्ट? तो क्रक्स ये निकला कि बावजूद इसके कि ये ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन है, हमें अपनी तैयारी जैसे चल रही थी, हमें उसी तरीके से करनी है, हमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं लाने की ज़रूरत है? इस बात को मैंने सब्सटेंशिएट करने की कोशिश अपनी तरफ से करी है। इंस्टीट्यूट से भी मेरी इल्तिजा और रिक्वेस्ट है और गुज़ारिश है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी और वेरिएशन ना रखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन की फॉर्मेशंस को कृपया वैसी ही रखें जैसे थी, ताकि बच्चों को एकदम से बहुत बड़ा बदलाव ना लगे और क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही हों। हालाँकि उनके अ, जो क्वेश्चन का डाटा जो हो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो और उन पर बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो। तो ऐसा करने से इंस्टीट्यूट और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट सारी पार्टियों के लिए विन-विन पोज़ीशन होगी। तो इन अल्फाजों के साथ फिर मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। तो टाइम टू से इट्स अ लवली, लवली गुड नाइट फ्रॉम हियर इन दिल्ली।